Hello students, today we are going to discuss our topic that is harmful microorganisms. Okay, in our previous lecture or previous video we had already discussed about the microorganisms which are helpful for us. Okay, and this is the part third video of chapter second, that is microorganisms and the viruses of class 8 science. Okay, let's start. See here, given you have that is many microorganisms are harmful to human beings, plants and animals. Such microorganisms may cause diseases in human, plants and the animals. है ना? Second point, they spoil foods, clothing and the leathers. Okay, let's know about the disease causing microorganism and the viruses. See, all animals and the human beings at one time or the other suffer from the diseases. These diseases are caused by the microorganisms. These microorganisms enter our body where they multiply, damage the body cells and cause the diseases. Means what? As we know that all animals and all living beings are suffer from illness and any types of diseases, okay, at one time or the other time. But then one question is arise that how the animals and the human beings and the plants become illness or suffer from diseases. How? Because these is the important factor which is microorganism, which are the only responsible for the these diseases. Okay, ऑल एनिमल्स, जितने भी जानवर हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, है ना, वो सब बीमार पड़ते हैं. तो वो कैसे वो लोग बीमार पड़ते हैं? हाउ दे बिकम इल, है ना, दे इल ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण से ही वो लोग बीमार पड़ते हैं. अब चलिए देखते हैं किस तरह से, है ना. लेट्स सी हाउ these microorganisms enter our body where they multiply, damage the body cells and cause the diseases. Okay, when they enters our body, जब हमारे बॉडी के अंदर वो लोग एंटर करते हैं तो दे स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, है ना, वो अपने आप को प्रोडक्शन करते रहते हैं, प्रोड्यूस करते रहते हैं. दे प्रोड्यूस इट सेल्फ एक्सपोनेंशियली, है ना, एक्सपोनेंशियली करते हैं. एक्सपोनेंशियली मीन्स क्या? सपोज करो अगर दो वायरस या दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में इंटर करता है तो वो क्या करेगा? 2 से 4 बनाएगा, है ना, है ना. दे बिकम फ्रॉम 2 to 4 एंड 4 to 8 एंड 8 to 16 एंड 16 to 32, 32 to 64 एंड 64 to 128. इस तरह से वो लोग बढ़ते रहते हैं. तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ इसी को कहा जाता है ना. हियर इज अ लिस्ट गिवन बिलो यू हैव, दैट इज द here in the left side of the left column you have given the name of the microorganism, and the right column you have given the disease caused by the this bacteria or the microorganism. Okay, now let's discuss from bacteria. You have the disease caused, that is pneumonia, tetanus and tuberculosis, leprosy, etc. These are the diseases which are caused due to the bacteria. And the next one is your fungi. Fungi is what? That is skin diseases, है ना, and food poisoning. Mainly the skin diseases are caused due to the fungi and the food poisoning. देखिए how the fungus grow, है ना, कैसे? Because due to the dirty clothes, है ना, we wear. हम लोग जब गंदे कपड़े को जब हम लोग पहनते हैं तो उसके वजह से ही क्या होता है, उसमें फंगी प्रोड्यूस हो जाता है जो हम लोग देख नहीं पाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, स्किन में इचिंग वगैरह हो जाता है. तो ये होता है आपका, ठीक है. फिर नेक्स्ट फूड पॉइजनिंग में भी होता है, जैसे आपका जो आपका वन नाइट आफ्टर वन नाइट व्हेन वी ईट द फूड विच आर रिमेन, है ना, तो उसको खाने से भी हमको कभी कभी फूड पॉइजनिंग हो जाता है, तो उसमें भी फंगस डेवलप हो जाता है. नेक्स्ट इज योर प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ मलेरिया हो गया, काला अजहर हो गया, एंड अमीबिक डिसेंट्री एंड गैस्ट्रीज, ये सब आपका बीमारी जो है आपका प्रोटोजोआ से होता है. एंड नेक्स्ट वन इज योर वायरसेस, है ना, वायरस.
वायरस मीन्स चिकन पॉक्स है ना, ये सब एड्स है ना, ये सब कुछ डिजीज, रेबीज, डेंगू, दीज आर द सम डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय द वायरसेस। ठीक है, तो इसको डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरह से ये सब बीमारी जो है फैलता है, तो उसका हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सी हियर यू हैव गिवन द सम पिक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया एंड द फंगी है ना, प्रोटोजोआ एंड द वायरस। ओके सी, बैक्टीरिया मीन्स व्हाट, देखिए बैक्टीरिया देखिए आपको दिखाया गया कि बैक्टीरिया किस तरह से होता है और फंगी किस तरह से होता है, प्रोटोजोआ का आपका माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, ये पिक्चर है ना, माइक्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया पिक्चर है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट में चल रहा हूँ आपको लेके, see the disease causing microorganism or the called are called pathogenic microorganisms or the simply as pathogens। देखो वो माइक्रोऑर्गेनिज्म जिसके वजह से डिजीज बीमारियां होती हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और यू कैन सिंपली से दैट द पैथोजेंस। ओके, सी पैथोजेंस डिस्टर्ब the normal functioning of the body by attacking a different parts of the body। क्या करता है पैथोजेंस, करते क्या है, पैथोजेंस मीन्स व्हाट, देखो बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, पैथोजेंस मीन्स व्हाट, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू टू विच डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज काउज्ड है ना, जिसके वजह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिजीज होते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है पैथोजेंस है ना। तो अब मैं ओनली जो हो क्या पैथोजेंस का ही यूज़ करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो पैथोजेंस दैट इज डिस्टर्ब करता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, जो भी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करता है तो उसको क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन इंटर आवर बॉडी थ्रू। देख नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज, दैट इज द फ्रॉम वेयर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन इंटर आवर बॉडी, कैसे वो लोग इंटर करते हैं, और इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स और इनसाइड द बॉडी ऑफ प्लांट्स है ना, किस तरह से। तो प्लांट्स का तो डिस्कशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ह्यूमन बींग्स का ही ज़्यादा ये हो रहा है, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स का। ठीक है, तो नेक्स्ट में लेके चल रहा हूँ, कैसे कैसे बता रहा हूँ मैं आपको किस तरह से एंटर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यू है हियर यू हैव गिवन दैट इज द फूड, वाटर एंड द एयर। कैसे होता है, फूड, वाटर एंड एयर के एयर से जो है आपका एंटर करता है। अगर हम कंटेमिनेटेड फूड है ना, गंदगी वाले फूड को अगर हम आपके फूड इंटेक करेंगे, फूड को खाएंगे है ना, व्हेन वी ईट द कंटेमिनेटेड फूड है ना विच आर अनकवर्ड है ना, और आपका स्ट्रीट फूड है ना, स्ट्रीट फूड जो रोड के बगल में बिकता है ना, तो वो उसको अगर हम लोग खाते हैं, अपने खाने में लेते हैं, तो अगर उसमें आपका पैथोजेंस है तो हमारे अंदर बॉडी में चले जाएगा। और फ्रॉम वाटर ऑल्सो एंड फ्रॉम एयर ऑल्सो है ना। सी हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर थ्रू द एयर। सी disease when a person which are suffering from the diseases sneeze or cough into the atmosphere। जब वो sneeze करता है, छींकता है, और जब वो cough मतलब खांसता है, तो क्या करता है, some water droplets come out from the their mouth। उसके मुंह से जो है कुछ उनके जो बीमार आदमी है, उनके मुंह से कुछ जो आपका वायरसेस और बैक्टीरिया है, थ्रू वाटर ड्रॉपलेट के थ्रू आपका एटमॉस्फेयर में रह गया, वो ट्रैप हो गया, वहाँ पे फंस के रहा। अब जैसे ही आप उस एयर को आप अगर क्या करो, नोज के थ्रू अगर आप उसको ब्रीथ करते हो, तो दे इंटर्स इनसाइड योर बॉडी है ना। सी, तो इस तरह से एंटर करता है। नाउ सेकंड पॉइंट यू हैव दैट अकर्स इन द स्किन थ्रू डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट आल्सो है ना। सम आर द बैक्टीरिया और वायरसेस दे आर स्प्रेड थ्रू द डायरेक्ट कांटेक्ट आल्सो है ना, बट द अगर आपके स्किन में कहीं पे कट है तो उससे भी वो एंटर कर सकता है। Okay, now carriers such as the mosquitoes and the flies, these are the insects that is they carry the viruses or microbes or the pathogens। you can say simply that is the pathogens है ना। तो वो pathogens को क्या करता है, वो कैरी करता है, कौन, mosquitoes and flies है ना, जो मक्खी और मच्छर ज़्यादातर होते हैं, जो हमारे घरों में भी पाए जाते हैं, जो कैरी करते हैं डिजीज़ को, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को कैरी करते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये आपका तीन मेन कारण है जिसके वजह से जो है आपका माइक्रोब्स जो है एंटर करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, नाउ सी disease caused by the microorganism and the viruses। Okay, now we are going to discuss about the disease caused by the microorganism such as bacteria, fungi, viruses and the protozoa and the और कम्युनिकेबल और द इन्फेक्शियस डिजीज़ है ना। देखो जो डिजीज़ है ना, आपका डिजीज़ जो भी है, डिजीज़ को फर्दर आफ्टर स्टडिंग दिस होल थिंग्स वी आर क्लासीफाई द डिजीज़ इनटू टू types। Okay, one types means you have that is communicable disease
or you can simply say that the infectious disease. And the second one you have, that is the non communicable disease. Okay, see, अब चलिए देखते हैं किस तरह से इसको जो है आगे जो है एक्सप्लेनेशन करता हूं मैं आपको. नेक्स्ट यू हैव दैट इज कम्युनिकेबल डिजीजेस, है ना, कम्युनिकेबल डिजीजेस. सी, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस? Diseases which can get transmitted from one person to another by direct or indirect contact are called the communicable disease or infectious disease, है ना. Disease which are get transmitted, जो ट्रांसफ़र होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, तो उसको बोला जाता है कम्युनिकेबल डिजीज. जैसे लेटेस्ट आपका अभी जो हाल फिलहाल में जो बीमारी जो आई हुई है, दैट इज कोविड-19, विच आर कॉज ड्यू टू द कोरोना वायरस, है ना. दे आर ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू द पर्सन टू पर्सन, है ना. तो वी कैन से दैट द इसी वजह से जो है ना, सारे स्कूल्स एंड द पब्लिक प्लेसेस जहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा, जहाँ पे रस्क ज़्यादा, भीड़ भाड़ इलाके को बंद किया गया है. जैसे सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, ये सब बंद है. क्यों? वाई दे आर क्लोज्ड, है ना, ड्यूरिंग द एपिडेमिक ऑफ द कोविड-19, बिकॉज दे स्प्रेड, है ना, थ्रू पर्सन टू पर्सन. ओके, ठीक ठीक है. और ये जो फैलता है तो हमको पता भी नहीं कर सकते किसके पास किसको बीमारी है, किसको बीमारी नहीं है ना. तो अगर वायरस वो कैरी कर रहा है तो वी ऑल्सो अफेक्टेड फ्रॉम व्हेन वी गो इन द एरिया वेयर द क्राउडेड एरिया, है ना. जब हम भीड़ वाले इलाके में जाएंगे तो हम लोग भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे. इस तरह से हम लोग को जाना नहीं है. तो इसी वजह से जो है लॉकडाउन भी हुआ है. चलिए, ये और टॉपिक है, ये हम इस पर डिस्कस करते हैं. तो मेनली कम्युनिकेबल डिजीज किसको बोला जाता है? डिजीज विच कैन गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय डायरेक्ट और इन द इनडायरेक्ट contact. Okay, and what are the diseases? See here some the diseases given, that is tuberculosis, cholera, typhoid, malaria, dysentery are the some common communicable diseases, है ना. ये कुछ बीमारियां हैं जो आपके कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर कैटेगराइज किया जाता है इसको. See, now communicable diseases are transmitted through the contaminated food, water, air, insects, infected clothes and utensils, है ना. इस तरह से होता है. कंटेमिनेटेड फूड मतलब जो फूड जो है जिसपे जो है गंदगी है ना, जो आपका स्ट्रीट साइड फूड है ना. उसके बाद वाटर, एयर, है ना, इंसेक्ट्स के थ्रू भी फैलता है ना. वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट मॉस्किटोज एंड द फ्लाई, है ना. एंड इन्फेक्टेड क्लोथ्स को भी पहनने से होता है, एंड यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह को भी. एंड व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज? क्या ट्रांसमिशन है, किस तरह से ट्रांसमिशन होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डायरेक्ट ट्रांसमिशन. पहले हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में? डायरेक्ट ट्रांसमिशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन से किस तरह से फैलता है. तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है? बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट द इन्फेक्शन में कॉज्ड बाय डायरेक्ट स्किन टू स्किन, है ना, म्यूकस और द म्यूकोसा टू द स्किन contact. Okay, see, mucosa to mucosa and the mucosa to the skin contact. नेक्स्ट आपका है बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. ओके, इन्फेक्टेड पर्सन ड्यूरिंग कफिंग और स्नीजिंग, spitting and the speaking may release droplets of moisture carrying the disease causing microorganism. These droplets when enters another person's body while breathing may make him sick. ओके, डिजीज लाइक whooping cough, है ना, ट्यूबरक्लोसिस, है ना, एक्सेट्रा और द ट्रांसमिटेड इन दिस वे. क्या इसका मतलब क्या है? देखो, मैं बता रहा हूँ आप लोग को. बाय ड्रॉपलेट ऑफ इन्फेक्शन, है ना. कैसा? एक इन्फेक्टेड पर्सन जब कफ खांसता है और छींकता है और जब थूकता है और जब बोलता है तो उसके मुंह से कुछ मॉइस्चर के टाइप में ड्रॉपलेट भी बाहर आता है. उस ड्रॉपलेट के साथ जो वायरस है जिसके वजह से उसको डिजीज़ हुआ है तो वो भी बाहर आ जाता है ना. और जब उस ड्रॉपलेट के कांटेक्ट में कोई अदर पर्सन, हेल्दी पर्सन आता है तो वो भी बीमार पड़ जाता है. तो इस तरह से आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी आपका हो सकता है. बाय यूजिंग एन इन्फेक्टेड निडल्स और द सिरिंज, है ना, इन्फेक्टेड निडल से भी होता है. अगर आपका जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको कुछ निडल जो आपका सुई से उसको यूज़ किया हुआ सुई अगर आपके पास आ गया तो आपको भी हो जाएगा. ठीक है, तो ये चीज़ है, जो बीमारी उसको है वो भी आपको हो सकता है. तो ये आपका जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन का था. अब इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं, है ना. लेट्स डिस्कस अबाउट द इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन. सी,
इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या क्या आता है? इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में आपका आता है द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऑल्सो एंटर द बॉडी ऑफ द पर्सन इनडायरेक्टली, है ना, इनडायरेक्टली भी जा सकता है। देखिए वेरियस मोड्स ऑफ द इनडायरेक्ट ट्रांसमिशंस आर थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड द वाटर, है ना। इन्फेक्टेड फूड मतलब कि इन्फेक्टेड पर्सन कोई खाना खाया और छोड़ दिया तो वो हम खा लिए, तो इन्फेक्टेड भी है वो। या फिर कहीं से कुछ जो है उस पर जो है कंटेमिनेटेड फूड को भी इन्फेक्टेड फूड बोला जाता है ना। फूड प्योर नहीं है, इन्फेक्टेड फूड को भी खाने से होता है। अब ये तो इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट हुआ। अब थ्रू एनी कैरियर्स सच एज ए मॉस्किटोज, है ना, हाउस फ्लाई, जैसे आपका मॉस्किटो क्या है अगर आपका मॉस्किटो क्या है, आपका जो फीमेल एनोफिलिस जो आपका मॉस्किटो होता है वो भी करता है आपका जो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। वो अगर इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को वो सक करती है, फिर आके आपके पास बैठती है, तो उसके बाद उसके अंदर जो वायरस जो है डेवलप हो जाता है, फिर वो आपको इंजेक्ट कर देती है प्रोटोजोआ। एंड हाउस फ्लाई की वजह से भी होता है थ्रू क्लोथ्स एंड द टॉवेल, हैंडकरशिफ और एंड पर्सनल यूटेंसिल ऑफ द पेशेंट, है ना। जो पेशेंट का जो क्लोथ्स है, टॉवेल है, ये सबको भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंड थ्रू द लास्ट पॉइंट दैट इज़ थ्रू डायरेक्ट डर्टी हैंड्स और द डर्टी यूटेंसिल, है ना, अनवाश्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तो इसकी वजह से भी आपका जो है क्या होता है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। नाउ our next point, that is the spread of the disease by the insect, है ना। okay, about the spread of the disease by the insect we will discuss in our next lecture.